dear students, I welcome you all in our new lecture from biomolecules. And in today's lecture, we are going to discuss amino acids. Amino acids, you know that they are the building blocks of proteins. Basically, अगर मैं बात करूं बायोमोलिक्यूल्स में, अभी तक हमने जो कार्बोहाइड्रेट्स डिस्कस किए, कार्बोहाइड्रेट्स दे आर कंपोज्ड ऑफ मोनोसैकेराइड्स. उसी तरह जो प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स जो हमें सेकंड क्लास ऑफ बायोमोलिक्यूल्स इस यूनिट में डिस्कस करने हैं, तो सारे प्रोटीन्स बने होते हैं अमीनो एसिड्स के. सो प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर समझने के लिए सबसे पहले हम अमीनो एसिड्स को समझते हैं. सो आज का लेक्चर इन्हीं अमीनो एसिड्स के रिलेटेड होगा. तो अमीनो एसिड्स हम किन्हें कहते हैं? दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. These are the organic compounds containing both acidic group as well as basic group in the same molecule. वो organic compounds जिनमें acidic group भी present हो और जिनमें basic group भी present हो, यानी कि acidic group like carboxylic group present हो या basic group like amino group NH2 group containing lone pair of electron. This group is called as basic group. And amino group वो compounds जिनमें carboxylic group, acidic group present हो और उसके साथ साथ एक amino group यानी कि basic group भी present हो, उन्हीं organic compounds को हम नाम देते हैं amino acids. So for the definition purposes you can say amino acids are the organic compounds which contain both acidic group, that is carboxylic group, as well as basic group, that is amino group in the same molecule. जैसे मैं समझाता हूं यहाँ पे amino acids जो होते हैं, amino acids की जो जनरल फॉर्मूला है, that is RCH C double bond OH, and here I am having NH2 group with lone pair of electron. ये जो आप ये मॉलिक्यूल देख रहे हो, दिस इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड. ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो ये वाला ग्रुप है COOH ग्रुप, इट इज कॉल्ड एसिडिक ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप. आई कैन राइट इट एज एसिडिक ग्रुप. एंड हियर दिस NH2 group which is capable of donating this lone pair of electron, and this group is called as basic group. So this entire compound which contains acidic group as well as basic group in the same molecule, this compound will be called as amino acid. So amino acid हम किसे कहते हैं? वो organic compound जिसमें एक acidic group भी present हो और एक basic group भी present हो. अब समझिए एक चीज, हम इसको acidic group क्यों कहते हैं? Because here we are having the bond between oxygen and hydrogen. You know that oxygen is highly electronegative atom and it will take the electrons from hydrogen, और hydrogen के electrons जब loss होंगे तो hydrogen यहाँ से निकलेगा in the form of H positive. That means this acidic group is called as so because it is able to give off or release proton. That is why this is called as acidic group. While as this NH2 group, in case of NH2 group, nitrogen is having a lone pair of electron, and this nitrogen can donate this lone pair of electron, and any electron donating group that you know, that is called as basic group. So in this entire compound we are having one acidic group and one basic group. That is why this compound is called as an amino acid, because amino acid amino group भी है और acidic group भी है, तो इसीलिए हम इस पूरे कंपाउंड को नाम देते हैं क्या? amino acid. तो समझ लीजिए एक चीज, मैं यहां पे एक कंपाउंड लेता हूं RCH COOH NH2. ये एक अमीनो एसिड है क्योंकि इसमें एसिडिक ग्रुप भी है और बेसिक ग्रुप भी है. ये एक अमीनो एसिड है. मैं दूसरा मॉलिक्यूल यहां पे लिख लेता हूं RCH NH2 with lone pair of electron CH2 COOH. This is also amino acid because we are having acidic group as well as basic group. And here I will write down RCH NH2 CH2 CH2 COOH group.
देख लीजिए इसमें भी एसिडिक ग्रुप है और यहां पे बेसिक ग्रुप है, तो ये भी एक अमाइनो एसिड है। अब देख लो ये जो ये वाला पार्ट है COOH ग्रुप, इट इज द मेन फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन अटैच होता है दैट इज कॉल्ड एज अल्फा कार्बन, ठीक है। नाउ हियर इट इज फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन अटैच है दिस इज कॉल्ड अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के साथ जो दूसरा कार्बन अटैच है दिस इज कॉल्ड एज बीटा कार्बन। नाउ सी हियर दिस इज योर फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन है दिस इज अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन के साथ ये वाला कार्बन दिस इज कॉल्ड बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन के साथ ये वाला कार्बन जो अटैच है इट इज कॉल्ड एज गामा कार्बन। नाउ सी मैंने यहां पे 3 अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर्स ड्रा कर दिए। ये एक अमाइनो एसिड है, ये दूसरा अमाइनो एसिड है, और ये एक और अमाइनो एसिड है। अगर आप इस वाले अमाइनो एसिड में देखो NH2 ग्रुप बेसिक ग्रुप, it is linked with alpha carbon. Amino group is linked with alpha carbon. This is called alpha amino acid. Alpha amino acid. When amino group of amino acid is linked with alpha carbon, the amino acid is called alpha amino acid. When the basic group NH2 group of amino acid is linked with beta carbon, then the amino acid is called beta amino acid. It's called beta amino acid. However, if the amino group of amino acid is linked with gamma carbon, then the amino acid is called gamma amino acid. ये चीजें आप याद रखोगे कि हमने अमाइनो एसिड्स के 3 टाइप्स कर दिए, एक तो अल्फा अमाइनो एसिड, दूसरा बीटा अमाइनो एसिड, और तीसरा गामा अमाइनो एसिड। सो अमाइनो एसिड्स की क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें, अमाइनो एसिड्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, that is alpha amino acids, beta amino acids, and gamma amino acids. And this classification is based on the fact that the nature of the carbon or to which NH2 group is linked. अगर NH2 ग्रुप अल्फा कार्बन के साथ लिंक हुआ है तो हम इसको अल्फा अमाइनो एसिड कहेंगे। अगर NH2 ग्रुप बीटा कार्बन के साथ लिंक हुआ है तो हम इसको बीटा अमाइनो एसिड कहेंगे। अगर NH2 ग्रुप गामा कार्बन के साथ लिंक हुआ है तो हम इसको गामा अमाइनो एसिड कहेंगे। लेकिन अब आप एक चीज समझो, क्लासिफिकेशन तो हो गई, डेफिनेशन ऑफ अमाइनो एसिड भी हो गई। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूं, इन 3 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स में से अल्फा अमाइनो एसिड्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। इनको मैं हटा देता हूं, गामा अमाइनो एसिड और बीटा अमाइनो एसिड को हमें हटा देता हूं। ये जो अल्फा अमाइनो एसिड है दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। व्हाई दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट? बिकॉज अल्फा अमाइनो एसिड्स जो होते हैं, अल्फा अमाइनो एसिड्स, they are the building blocks. They are the building blocks of plant and animal proteins. जो भी नेचुरल प्रोटीन्स है, नेचुरल प्रोटीन्स, प्लांट से जो प्रोटीन्स हम ऑब्टेन करते हैं या जो एनिमल्स प्रोटीन्स प्रोड्यूस करते हैं, वो सारे प्रोटीन्स बने होते हैं किनके? अल्फा अमाइनो एसिड्स के। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग आउट ऑफ अल्फा, बीटा and gamma amino acids, alpha amino acids are of prime importance. Why? Because they are the main building blocks of plant and animal proteins. That is why I am saying this class of amino acids, alpha amino acids, this class is very important class of amino acids. Now see one more thing. अभी तक प्लांट्स और एनिमल्स में टोटल 20 अल्फा अमाइनो एसिड्स ऑब्टेन किए गए हैं। There are 20 types of alpha amino acids which have been obtained from plant and animal proteins. अल्फा अमाइनो एसिड्स कौन से अमाइनो एसिड्स होते हैं? वो अमाइनो एसिड्स जिनमें अमाइनो ग्रुप NH2 ग्रुप इट इज लिंक्ड विद अल्फा कार्बन, दोस अमाइनो एसिड्स आर कॉल्ड as alpha amino acids, and there are 20 such amino acids which are obtained from plants and animals. ये चीज आप याद रखिएगा। लेकिन जो 20 अल्फा अमाइनो एसिड्स है, 20 alpha amino acids, they differ in the value of this R. अल्फा अमीनो एसिड्स वो अमीनो एसिड्स है जिनमें अमीनो ग्रुप अल्फा कार्बन के साथ लिंक हुआ हो, दोज आर कॉल्ड अल्फा अमीनो एसिड्स है, अमीनो एसिड्स। और इन्हीं की 20 एग्जांपल्स है। 20 अल्फा अमीनो एसिड्स हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल प्रोटीन्स, और वो 20 अल्फा अमीनो एसिड्स जो डिराइव किए गए हैं फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल प्रोटीन्स, दे डिफर इन द वैल्यू ऑफ आर। आर का वैल्यू उनमें डिफरेंट होता है। तो एक चीज समझो आप, द 20 अल्फा अमीनो एसिड्स विच डिफर इन द वैल्यू ऑफ आर, ठीक है, उनको हमने डिवाइड किया है 2 टाइप्स में।
टू टाइप्स में, वन इज एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, एसेंशियल अल्फा अमाइनो एसिड्स, एंड दूसरा है नॉन एसेंशियल अल्फा अमाइनो एसिड्स। जो 20 अल्फा अमाइनो एसिड्स प्लांट एंड एनिमल प्रोटीन्स में पाए गए हैं, उनके दो टाइप्स किए गए हैं, अल्फा एसेंशियल अमाइनो एसिड्स एंड अल्फा नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। अब जो ये अल्फा एसेंशियल अमाइनो एसिड्स है, दीज आर दोज अल्फा अमाइनो एसिड्स, essential amino acids, these are those alpha amino acids which are not synthesized in our body, which are not produced by our body. That is why they are called essential, because they must be supplied to our body through diet. इसलिए हम इनको essential amino acids कहते हैं. So essential amino acids या essential alpha amino acids are those amino acids which are not produced in our body. That is why they must be supplied to the human body through diet. That is why they are called essential amino acids. और इनका जो total number है, that is 10. Out of 20 alpha amino acids, 10 alpha amino acids are not synthesized in our body. Those are called as essential amino acids. They must be supplied through diet. While as non-essential amino acids are the remaining 10 alpha amino acids, which are synthesized by our body. ये नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स वो अल्फा अमीनो एसिड्स है जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, तो इनको हमने नाम दिया है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, क्योंकि अगर हमारे फूड मटेरियल में ये प्रेजेंट नहीं होंगे तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी ये खुद से प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसीलिए हम इनको नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहते हैं. सो देयर आर 10 अल्फा अमीनो एसिड्स which are non-essential, and there are 10 alpha amino acids which are essential. They must be supplied through the body as they are not synthesized by our body. They must be supplied to our body in the form of diet. तो देख लीजिए मैंने अभी कहा कि there are 20 alpha amino acids which differ in the value of R. यहां पे याद रखना, if R is equal to this R, if R is equal to hydrogen, then the amino acid is called as glycine. If this R is equal to CH3, then the amino acid is called alanine. ये चीज याद रखना. If R is equal to hydrogen, the amino acid can be called as glycine. If this R is equal to CH3, then the entire amino acid will be called as alanine. Likewise, if R is equal to, अगर ये R, if this R is equal to CH3, if this R is equal to propyl group, then the amino acid is called as valine. This is called as valine. इसको मैं valine को यहाँ पे स्टार लगा लेता हूं, एक स्टार लगा लेता हूं, यहाँ पे मैंने स्टार लगा दिया, यहाँ पे ये चीज याद रखना, valine को मैंने यहाँ पे एक स्टार लगा दिया. तो अगर R के बदले आप हाइड्रोजन लिखोगे तो अमीनो एसिड बनेगा ग्लाइसिन. अगर आप R के बदले लिखोगे CH3, अमीनो एसिड जो बनेगा दैट विल बी कॉल्ड एज एलानिन. अगर आप इस R के बदले लिखोगे प्रोपाइल ग्रुप CH3, द अमीनो एसिड कॉल्ड एज valine, और मैंने यहाँ पे स्टार रख दिया. अब समझो और एक चीज, अगर आप R के बदले इस R के बदले, अगर आप R के बदले इस R के बदले लेते हो NH2 विथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन CH2 होल 4, इफ R के बदले आप ये ग्रुप लोगे NH2 CH2 होल 4, देन द अमीनो एसिड इज कॉल्ड लाइसिन. तो मैंने यहां पे इसको भी स्टार लगा दिया है. आप देख लीजिए, मैंने 4 अमीनो एसिड ले लिए, ग्लाइसिन, एलानिन, इन दोनों को मैंने स्टार नहीं लगाया, और वैलिन को स्टार लगा दिया और लाइसिन को भी स्टार लगा दिया. ऐसे ही करके देखो, ग्लाइसिन में R का वैल्यू H, एलानिन में R का वैल्यू CH3, और वैलिन में R का वैल्यू प्रोपाइल ग्रुप, और लाइसिन में R का वैल्यू NH2 CH2 होल 4. अब देखो,
ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन या लाइसिन, ये सारे अमाइनो एसिड्स डिफर करते हैं इन द वैल्यू ऑफ आर। अब आपके लिए मैं एक होमवर्क रखता हूं। मैंने कहा 20 अल्फा अमाइनो एसिड्स है, 20 अल्फा अमाइनो एसिड्स जो है वो सारे अल्फा अमाइनो एसिड्स है, सारे अल्फा अमाइनो एसिड्स का NH2 ग्रुप दैट विल बी लिंक्ड विद अल्फा कार्बन। लेकिन जो R का वैल्यू है 20 अल्फा अमाइनो एसिड्स में, दैट इज डिफरेंट, लाइक इन दीज 4। यहां R का वैल्यू हाइड्रोजन, R का वैल्यू CH3, R का वैल्यू प्रोपाइल ग्रुप, R का वैल्यू ये, ठीक है। तो 4 अमाइनो एसिड्स की एग्जांपल तो मैंने दे दी। रेस्ट जो बाकी 16 अल्फा अमाइनो एसिड्स है उनके R का वैल्यू आप NCERT के बुक में देखोगे, वहां पे एक टेबल दिया गया है NCERT के बुक में, या आपकी जो भी बुक अवेलेबल होगी घर में, तो उसमें आप देखोगे अमाइनो एसिड्स का एक टेबल दिया गया है जिसमें R का वैल्यू एक साइड से लिखा है और दूसरे साइड से अमाइनो एसिड का नाम लिखा गया है। इफ R is equal to hydrogen, then amino acid is called as glycine. If R is equal to CH3, amino acid is called alanine. If R is equal to this group, then the amino acid is called valine. If R is equal to this group, then the amino acid is called lysine. And likewise, अगर मैं आपको और एक एग्जांपल दूं, if R is equal to COOH, CH2, single bond CH2, CH2 and CH2, ये चीज आप देखो, sorry, if R is equal to COOH, CH2, CH2, then the amino acid is called glutamic acid. तो ऐसे ही करके आप एक चीज करोगे, मैंने यहां पे 5 अमाइनो एसिड ले लिए, ग्लाइसिन, एलानिन, लाइसिन, वैलिन, ग्लूटामिक एसिड। ये सारे अमाइनो एसिड जो है अल्फा अमाइनो एसिड्स है, दे डिफर इन द वैल्यू ऑफ आर। तो मैंने 5 अमाइनो एसिड्स के आर के वैल्यू आपको बता दिए। रेस्ट जो 15 अल्फा अमाइनो एसिड्स है उनके आर का वैल्यू आप अपनी बुक में जो टेबल दिया गया है NCERT की बुक में, उससे आप आर का वैल्यू इनका लिख लोगे। तो यहां पे आपको मैंने समझा दिया कि देयर आर 20 अल्फा अमाइनो एसिड्स विच डिफर इन द वैल्यू ऑफ आर। अब याद रखो एक चीज, अब मैं आपको एक चीज समझाता हूं। ये जो वैलिन है इसको मैंने स्टार क्यों लगा दिया, यहां पे भी मैंने स्टार लगा दिया। अब जब बुक पे देखोगे ना, जो बुक में आपको अमाइनो एसिड्स का टेबल दिया गया होगा, वहां पे कुछ अमाइनो एसिड्स के नाम के पास स्टार लगा होगा। जिन जिन अमाइनो एसिड्स के नाम के साइड में स्टार लगा होगा, दोज आर एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। ये एक एसेंशियल अमाइनो एसिड है, एसेंशियल अमाइनो एसिड। और ये लाइसिन, इसको भी मैंने स्टार लगा दिया, इट विल आल्सो बी एसेंशियल अमाइनो एसिड। Essential amino acid means not synthesized by our body, they must be supplied to our body through diet. अब ग्लाइसिन जो है इसको मैंने स्टार नहीं लगा दिया, इट विल बी नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। एलानिन को भी मैंने स्टार नहीं लगा दिया, इट इज आल्सो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। ग्लूटामिक एसिड को भी मैंने स्टार नहीं लगाया, इट इज आल्सो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। ऐसे ही आप क्या करोगे, जो बुक पे 20 अमाइनो एसिड्स दिए गए होंगे, पहले आपको हर किसी के आर का वैल्यू देखना है क्या है, और उसके बाद देखना है उन 20 अमाइनो एसिड्स में से कौन कौन से अमाइनो एसिड के नाम के पास स्टार लगा है, वो सारे अमाइनो एसिड्स कहलाएंगे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। और टोटल में 20 अल्फा अमाइनो एसिड्स है और 20 में से 10 एसेंशियल है और 10 नॉन एसेंशियल है। इसीलिए जो आपके बुक पे टेबल दिया गया होगा वहां पे 10 अमाइनो एसिड्स के नाम पे स्टार दिया गया होगा एसेंशियल वालों पे, और नॉन एसेंशियल वालों पे स्टार नहीं दिया गया होगा। तो इसके साथ हमने अल्फा अमाइनो एसिड्स को भी डिस्कस किया, और अल्फा अमाइनो एसिड्स के दो टाइप्स, एक तो एसेंशियल और नॉन एसेंशियल, वो चीज आप याद रखिएगा। आई एम गोइंग टू टेक वन मोर क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। देख लीजिए, वन मोर क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। एक क्लासिफिकेशन मैंने अभी आपको पढ़ाई, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ कार्बन, alpha, beta or gamma, to which amino group is linked. On that basis we classify amino acids into 3 types: alpha amino acid, beta amino acid and gamma amino acid. एंड फिर हमने कहा अल्फा अमाइनो एसिड जो है दे रिप्रेजेंट द मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल प्रोटीन्स। इसलिए फिर हमने अल्फा अमाइनो एसिड्स के अलग टाइप्स बता दिए, एक तो एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। एसेंशियल वाले अल्फा अमाइनो एसिड्स 10 होते हैं और नॉन एसेंशियल वाले भी 10 होते हैं, तो टोटल में अल्फा अमाइनो एसिड्स 20 होते हैं। अब मैं आपको और एक क्लासिफिकेशन समझाता हूं अमाइनो एसिड्स के। एक अमाइनो एसिड में
कितने एसिडिक ग्रुप्स प्रेजेंट है और कितने बेसिक ग्रुप्स प्रेजेंट है। ऑन दैट बेसिस अमाइनो एसिड्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। ये याद रखना, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ एसिडिक ग्रुप्स and the basic groups present in the amino acids, they are classified into 3 types, number 1, number 2 and number 3। याद रखना, एक अमाइनो एसिड में कितने एसिडिक ग्रुप्स है या कितने बेसिक ग्रुप्स है, या क्या एसिडिक और बेसिक ग्रुप्स बराबर बराबर है, कि एसिडिक ग्रुप ज्यादा है या बेसिक ग्रुप ज्यादा है, कि बराबर बराबर है। ऑन दैट बेसिस अमाइनो एसिड्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 more types। One is called neutral amino acid. Neutral amino acid. Neutral amino acids are those amino acids in which the number of acidic groups and basic groups are same। ये चीज याद रखना। एंड दूसरा टाइप है acidic amino acids। Acidic amino acids. Acidic amino acids are those amino acids which contain extra acidic group as compared to basic group। acidic group इसमें ज्यादा होंगे तो it will be called as acidic amino acid। acidic amino acid। और likewise थर्ड टाइप जो होगा that will be called as basic amino acid। basic amino acids वो amino acids है which contain extra basic group, amino group जिनमें extra हो as compared to acidic group जिनमें basic group extra हो, those will be called as basic amino acids। चलिए मैं एग्जांपल समझाता हूं मैं एग्जांपल। इसको मैं हटा देता हूं। इसको मैंने कहा था अमीनो एसिड्स की जो जनरल फार्मूला है दैट इज RCH COOH एंड NH2 विथ लोन पेयर। ये जो R है, R का वैल्यू कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ अमीनो एसिड। क्या ये ग्लाइसिन है, वैलिन है, हिस्टिडीन है, ल्यूसीन है, आइसोल्यूसिन है, प्रोलीन है, ग्लूटामिक एसिड है, एस्पार्टिक एसिड है, या कौन सा अमीनो एसिड है। अलग अलग अमीनो एसिड में R का वैल्यू अलग अलग होता है। अगर मैं R के बदले H लिखूं यहां पे, H हाइड्रोजन, तो फॉर्मूला विल बी R के बदले H CH NH2 विथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड COOH। देखिए बेटा, मैंने R के बदले यहां पे हाइड्रोजन लिखा। दिस अमीनो एसिड विल बी कॉल्ड एज ग्लाइसिन। दिस इज ग्लाइसिन। नाउ सी इन केस ऑफ ग्लाइसिन वी आर हैविंग वन अमीनो ग्रुप बेसिक ग्रुप एंड वन एसिडिक ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप। देखिए एक एसिडिक ग्रुप है और एक बेसिक ग्रुप है। एसिडिक ग्रुप और बेसिक ग्रुप जब बराबर बराबर हो ऐसे अमीनो एसिड को हम न्यूट्रल अमीनो एसिड नाम देते हैं। तो ग्लाइसिन इज अ न्यूट्रल अमीनो एसिड बिकॉज इसमें एक ही एसिडिक ग्रुप है और एक ही बेसिक ग्रुप है, बराबर बराबर है दोनों, तो इसको हम न्यूट्रल अमीनो एसिड कहेंगे। क्योंकि R के बदले हमने हाइड्रोजन लिखा, अगर आप R के बदले CH3 लिखोगे ये एलानीन बनेगा। एलानीन इज आल्सो ए न्यूट्रल अमीनो एसिड। चलिए एसिडिक अमीनो एसिड मैं आपको समझाता हूं। एसिडिक अमीनो एसिड, acidic amino acid is that amino acid which contains extra acidic group, extra carboxylic group। अब देख लीजिए, मैं R के बदले लूंगा COOH CH2 CH2। ये मैंने R के बदले ये वाला ग्रुप ले लिया, ये वाला ग्रुप मैंने ले लिया R के बदले। R के बदले मैंने लिया COOH CH2 CH2। फिर आएगा अपना CH के साथ नीचे NH2 और यहां पे आएगा COOH। देखिए ये हमारा मेन पार्ट है, COH CH NH2 और इस R के बदले मैंने ये वाला ग्रुप ले लिया CH2 COOH CH2। अब जो ये कंपाउंड है दिस इज कॉल्ड एज ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड में आप देखो यहां पे क्या है, यहां पे एक एसिडिक ग्रुप COOH, यहां पे भी एक एसिडिक ग्रुप COOH, यानी कि इसमें दो एसिडिक ग्रुप है लेकिन बेसिक ग्रुप एक ही है। एसिडिक ग्रुप दो और बेसिक ग्रुप एक, और एक एसिडिक ग्रुप एक बेसिक ग्रुप का इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करेगा, और यहां पे एक और एसिडिक ग्रुप है, तो इस कंपाउंड का जो नेचर होगा वो एसिडिक होगा, इसीलिए हम कहेंगे इट इज एन एसिडिक अमीनो एसिड। सो एसिडिक अमीनो एसिड इज दैट अमीनो एसिड which contains extra acidic group as compared to basic group, it will be called as acidic amino acid। और इसमें एग्जांपल क्या आएगी, ग्लूटामिक एसिड।
glutamic acid. I will take the last example, basic amino acid. Basic amino acid तो नाम से ही पता चलता है, it is that amino acid which contains extra basic group. इसमें extra basic group होगा. समझिए, if R के बदले में लेता हूं NH2 CH2 whole 4, R के बदले मैंने ये लिया NH2 CH2 whole 4, फिर मैं अपना वाला पोर्शन लेता हूं CH NH2 with lone pair and COOH. अब जो एक कंपाउंड है इसमें मैंने R के बदले ये वाला पोर्शन लिया, R के बदले ये पोर्शन. दिस अमाइनो एसिड इज कॉल्ड लाइसीन. अब आप लाइसीन में देखो, लाइसीन में ये बेसिक ग्रुप एक है और ये भी बेसिक ग्रुप एक है. यहां पे दो बेसिक ग्रुप है लेकिन एसिडिक ग्रुप एक ही है. जब बेसिक ग्रुप ज्यादा हो एसिडिक ग्रुप के कंपैरिजन में, सो अमाइनो एसिड इज कॉल्ड एज बेसिक अमाइनो एसिड. और इसमें मैंने एग्जांपल दे दी क्या, लाइसीन. सो लाइसीन में दो बेसिक ग्रुप है और एक एसिडिक ग्रुप है, तो बेसिक कैरेक्टर ज्यादा रहेगा, इट विल बी कॉल्ड एज बेसिक अमाइनो एसिड. सो दिस वाज ऑल अबाउट द एलिमेंट्री आइडिया रिगार्डिंग द अमाइनो एसिड्स. अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम अमाइनो एसिड्स के रिलेटेड पढ़ते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, और फिर हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में पेप्टाइड्स और पॉलीपेप्टाइड्स कैसे बनते हैं. उसके बाद हम फिर डिस्कस करेंगे पॉलीपेप्टाइड्स के बाद प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर, प्रोटीन्स का प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर. इंशाल्लाह आते हैं एक नए लेक्चर के साथ बहुत जल्द. तब तक आप अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए कंटिन्यूअसली सारे लेक्चर्स और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन करते रहिए. खुदा हाफिज.